Hello everyone, I am Sangeeta Jha. I'm an assistant professor in Pacific Institute of Business Studies. Today I welcome you all in the online class of e-commerce where I'm going to discuss e-payments. As we all know, e-commerce plays a vital role in the progress of a country. So how these thousands of transactions takes place very smoothly. A customer who is sitting at one of the corner of the world and he's buying the product and he is making online payments. And thus, so how these payments takes place? What are the tools that are used to make these payments possible? So as you can see that there are a number of options available to the customer to make the payment like credit card, debit card, net banking, UPI payments, COD, cryptocurrency. इन सब टूल्स की मदद से इन सब ऑप्शंस की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे मोड्स ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, कैसे ये काम करते हैं, इनकी डिटेल हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। इट्स अ प्लास्टिक कार्ड। इट इज ऑफन issued by a bank or a financial institution. It allows users to make purchases on credit. That means the basic function of a credit card is it provides credit facility. Credit means we are not paying it with the help of cash. We are taking the help of this credit card, and then at a later date we are supposed to pay to the institution the due amount. That means कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड की मदद से परचेज करते हैं तो कुछ एक लिमिट जो बैंक डिसाइड करती है उस लिमिट के अंदर अगर आप परचेज करते हो तो हम इस क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट कर सकते हैं, एंड ऑन अ लेटर डेट वी आर सपोज टू रीपे दिस अमाउंट टू द बैंक्स। जब हम क्रेडिट कार्ड की मदद से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स, तो क्रेडिट कार्ड हमें कुछ रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स भी देता है लाइक डिस्काउंट्स एंड cashback, etc. It also helps in building a positive credit score. Or it can be negative as well. When a customer doesn't repay the due amount on time, then of course it builds a negative score, and the score is positive when a customer is paying due amount on time within the stipulated period. तो इस क्रेडिट स्कोर की मदद से आप कहीं भी किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक के साथ किसी भी तरह का लोन का ट्रांजैक्शंस हो सकता है। इट्स अ सोर्स ऑफ इमरजेंसी फंड। अगेन, जब भी हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ही इमरजेंसी में फंड की जरूरत पड़ती है, तो जो भी लिमिट बैंक डिसाइड करता है उसके अंदर अगर हमें किसी भी अमाउंट की जरूरत है तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्रेडिट कार्ड also. And the most important function that is it provides is it is accepted globally. क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अगर आपको ये एक असिस्टेंस मिलता है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है जिसकी, तो क्रेडिट कार्ड की मदद से हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और at a later date we can make the payments as well. So this is a kind of uh, mode of payment which is very useful for a customer, but it should be used very wisely. The next mode of payment is debit card. A debit card is a plastic card issued by a bank or a financial institutions to its account holders. Account holders, that means we should have an account with the respective banks or financial institutions. Unlike credit card, it does not provide us any credit facility. तो इसका मतलब है कि एक बेसिक डिफरेंस जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में होता है, क्रेडिट कार्ड हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जबकि डेबिट कार्ड हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें जो भी बैलेंस हमारा बैंक बैलेंस है उसके अंदर ही हम परचेज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। The basic functions of the debit card is that it helps us in making purchases. It is also used in transferring fund from one account to other. तो अगर हमें कोई फंड ट्रांसफर करना है बिटवीन डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, हम डेबिट कार्ड की मदद से फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। डिफरेंट बिल पेमेंट्स के लिए डेबिट कार्ड को यूज किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल पेमेंट्स में भी डेबिट कार्ड की मदद से हम कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक मोड ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन है, जहां हम बिना किसी कॉन्टैक्ट के विद द हेल्प ऑफ दैट कार्ड ओनली वी कैन मेक द पेमेंट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी डेबिट कार्ड के द्वारा संभव है। डेबिट कार्ड के
ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए थे, कुछ एक नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, उन नंबर्स की हेल्प से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेट बैंकिंग. It is a digital banking service that allows customers to conduct financial transactions through a bank's website or mobile app. कोई भी बैंक का नेट बैंकिंग अगर हमें एक्सेस करना होता है तो हमें या तो बैंक की वेबसाइट पे जाना पड़ता है या उसके मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना होता है. नेट बैंकिंग की मदद से हम कहीं भी बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं. इसकी मदद से हम अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो ट्रांसफर द फंड्स विद द हेल्प ऑफ NEFT, RTGS, IMPS, etc. With the help of net banking, we can also pay the bills, like we can pay the phone bills, or we can recharge the phone services. We can take the help of net banking, and at anywhere we can avail the facilities of bank. हम नेट बैंकिंग की मदद से FDs भी खुलवा सकते हैं या रेकरिंग डिपॉजिट्स भी अवेल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर लोन के लिए अप्लाई करना हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो तो नेट बैंकिंग का यूज किया जा सकता है. ये हमें अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में या इंश्योरेंस लेने में, किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, या हमें अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस लेना हो तो हम नेट बैंकिंग के मदद से अप्लाई कर सकते हैं. तो इसका मतलब with the help of net banking facility, we are not supposed to stand in a queue and apply for the loans, and we are not supposed to provide so many documents to the banks. We can access these facilities very easily, even if we are at home. The fourth mode of payment is UPI payments. UPI stands for Unified Payments Interface. Nowadays, this is widely used by all the customers. Various UPI apps like Google Pay, PhonePe, Paytm are used for these payments, for online as well as offline payments. It only needs UPI ID and UPI PIN. UPI ID एक यूनिक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है जो किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जिसकी जरूरत पड़ती है, और इस ऐप को एक्सेस करने के लिए 4 डिजिट या 6 डिजिट की एक पिन की रिक्वायरमेंट होती है जो ट्रांजैक्शन के ऑथराइजेशन के लिए जरूरी होता है. इस ऐप की मदद से, इन ऐप्स की मदद से हम किसी भी बैंक अकाउंट से, हमारे किसी भी बैंक अकाउंट को लिंक करके हम पेमेंट कर सकते हैं. बहुत इसमें एक या एक से अधिक बैंक अकाउंट को उस UPI ID से लिंक किया जा सकता है. These apps also provide us QR code. So what we are supposed to do, we just scan this QR and we can make the payments with the help of these QR codes. तो ये बहुत ही widely spread and widely used mode of payment है जिसकी मदद से हम कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. कैश ऑन डिलीवरी, जो कि हम अभी तक हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पेमेंट है कि हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके हम उन्हें कैश से पेमेंट करते हैं. तो इट इज अ पेमेंट मेथड वेयर कस्टमर्स पे फॉर गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इंस्टेड ऑफ पेइंग इन एडवांस. तो जब भी हम दूसरे मोड ऑफ पेमेंट से पे करते हैं, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वहां हमें एडवांस पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है. पर जब हम कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इसका मतलब जब हमें गुड्स रिसीव हो जाएगा उस समय हम पेमेंट कर सकते हैं कैश के द्वारा. The latest mode of payment is cryptocurrency. It is a form of currency that exists digitally or virtually and uses cryptography to secure transactions. इसका मतलब कि ये क्रिप्टो करेंसी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक डिजिटल करेंसी है और ये वर्चुअली प्रेजेंट है, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस का पेमेंट इस डिजिटल करेंसी के मदद से हम कहीं भी किसी भी देश में किसी भी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. क्रिप्टो करेंसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू नहीं करता, ना ही इसे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट करता है. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में RBI करेंसी को कंट्रोल करती है, करेंसी इशू को कंट्रोल करती है, करेंसी फ्लो को कंट्रोल करती है. पर इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी वी डोंट हैव एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और रेगुलेटिंग अथॉरिटी. इस तरह के ट्रांजैक्शंस में, इस तरह की करेंसी में डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूज किया जाता है जो इनके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और नए यूनिट्स को
इशू करते हैं. The features that a cryptocurrency have are secure and transparent. So transactions are recorded on a public ledger, which is known as blockchain. It is very much secure and transparent mode of payment. It can be used in borderless transactions as well, because cryptocurrencies can be sent anywhere in the world instantly. And again, one of the limitation that a cryptocurrency has is many cryptocurrencies like Bitcoin have a fixed supply. So it is having a very much limited supply. With this, we come to an end of the session. I hope you all might have got an idea regarding the various modes of electronic payment. So thank you all for listening to me very patiently. I hope that we will continue this discussion in further upcoming classes. Thank you.